নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আমি মুমেন্স ডি অপর্ণা বলছি। আমরা আগ্রা ভ্রমণ শেষ করে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম জয়পুরের উদ্দেশ্যে। যেহেতু জয়পুরের রাস্তাতেই ফতেপুর সিক্রি পড়ে, তাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ফতেপুর সিক্রি দেখে তারপর আমরা জয়পুরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাব। এই জন্যে আমরা খুব ভোর বেরিয়েছিলাম, যাতে রাস্তায় জ্যামজট না পড়তে হয়। সেই জন্যে আমাদের অনেক ভোরেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম ফতেপুর সিক্রি দেখবার জন্যে। আর সেই রাস্তা, এত সকালেও আমরা দেখতে পেয়েছিলাম বেশ রাস্তায় জ্যামজট আছে। এটি আগ্রা থেকে জয়পুর যাওয়ার যে রাস্তা, সেই হাই রোড এইটি। এই হাই রোডে বেশি সময় লাগে না ফতেপুর সিক্রি যেতে, কিন্তু এই মাঝের যে রাস্তাগুলো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো একদম জ্যামজটে ভরা। এইটি একটি ফুলের মার্কেট ছিল। এই রাস্তাগুলো আমাদেরকে পার করতে হয়েছে। পৌঁছতে এখানে প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা লেগেছিল। এই ফতেপুর সিক্রির মেন গেট বা প্রধান দরওয়াজা, এর ভেতর দিয়ে কিছুটা গাড়ি করে আমরা যেতে পারি। তারপরে কিন্তু সেখানে চেকাররা গাড়ি আটকে দেবে, থামিয়ে দেবে, কেননা তারপর থেকে গাড়ি যাওয়া নিষেধ। ওদের নিজস্ব বাস আছে, সেই বাসে করে আপনারা যেতে পারেন। এইখানেই আপনাকে আটকে দেবে। এরপর থেকে আপনাকে হেঁটে অথবা ওদের যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে তাতে আপনাকে যেতে হবে। আমরা অনেক ভোর পৌঁছে গিয়েছিলাম বলে তখনও বাস চালু হয়নি। বাস 8টার পর এখানে চালু হয়, তাই আমাদেরকে পায়ে হেঁটেই যেতে হয়েছে ফতেপুর সিক্রির মেন ভেতরে দেখবার জন্যে। এখান থেকেই আপনারা গাইড পেয়ে যাবেন, একটু দরদাম করে নেবেন অবশ্যই। গাইড আপনাদেরকে সঙ্গেই নিয়ে যাবে ভেতরে। এখানে ভেতরে দুটো আলাদা জায়গা আছে দেখার জন্যে, এবং আলাদা জায়গায় আলাদা 2 গাইড আপনাকে নিতে হবে। আমরা নিয়েছিলাম 2 জন গাইড, আপনারা চাইলে নিতেও পারেন, না চাইলে নাও নিতে পারেন। বোঝার জন্যে বা ঐতিহাসিক সমস্ত দিকটা জানবার জন্যে অবশ্যই গাইডের প্রয়োজন হয়, তাই আমরা এই ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। আমরা ভেতরে প্রবেশ করছি। গাইডের বলা কথাগুলো একটু আপনারা শুনে নেবেন। यहाँ पर 2 जगह है, दोनों ही जगह अलग अलग है। फतेहपुर अलग है और सीकरी अलग है। ये जो सामने आप लोग आबादी देख रहे हैं, इस पूरे आबादी को फतेहपुर बोला जाता है, क्योंकि इस जगह का नाम बाबर ने रखा था। बाबर ने इस जगह का नाम इसलिए रखा था क्योंकि बाबर यहाँ सबसे पहले आए थे मुगलों में, और बाबर ने यहाँ आकर एक लड़ाई लड़ी थी 1527 में। लड़ाई हुआ था खांडवा में, जो खांडवा बाबर ने जीता था। उर्दू में जीत को फतेह बोलते हैं, इसलिए उसने नाम दिया था फतेहपुर। सीकरी इसके पीछे बना हुआ है पुराना गांव, तो दोनों जगह मिलाकर फतेहपुर सीकरी बोला जाता है। ये जो दरवाज़ा आप लोग देख रहे हैं, बादशाही दरवाज़ा इसका नाम है। अकबर बादशाह फ्राइडे के दिन इसी गेट से अंदर जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए। अंदर में जमा मस्जिद बना हुआ है, और इसी के अंदर एक वो दरगाह है पीर बाबा का, जो आपने कभी नाम सुना होगा, हज़रत शेख सलीम चिश्ती, क्योंकि वो अकबर का गुरु था। उसी के आशीर्वाद से अकबर को औलाद मिला था। अभी हम लोग जब अंदर जाएगा तो अंदर शूज़ अलाउड नहीं होता है। अपना शूज़ हम लोग वहाँ वॉचमैन के पास खोलेगा, उसके बाद अंदर जाएगा। आइएगा। এটাই মেন দরওয়াজা, বুলন দরওয়াজার দিকে চলেছি। এখানে জুতো খুলে প্রবেশ করতে হয় ভেতরে। এখানে জুতো খুলতে 10 টাকা করে নেয়, এই জুতো খোলার জায়গা। আমি একটু বলে রাখি, ভেতরে গিয়ে আপনারা যেটা দেখতে পাবেন, প্রচুর লোক অনেক জিনিসপত্র বিক্রি করছে, সাজের জিনিস, বিশেষ করে মেয়েদের। সেখানে প্রচুর ওরা টানাটানি করবে নেবার জন্যে, বার্গেনিং করবে। নেবার ইচ্ছা থাকলে বার্গেনিং করে নেবেন, আর নইলে ওরা প্রচুর পিছনে ডিস্টার্ব করে, আপনাকে প্রচুর টানাটানি করবে। আমি কিন্তু কিছু নিইনি, কারণ ওরা প্রচণ্ড সবাই মিলে ডিস্টার্ব করছিল। ভেতরের পুরো অংশটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। অবশ্যই ভালো লাগলে আমার সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটিকে, লাইক দিন, ফলো করুন। आप लोग सब देखिएगा, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हैं, इसी पूरे कॉम्प्लेक्स को फतेहपुर फोर्ट कहा जाता है मैम। और यही पूरा था
लेकिन बादशाह अकबर के उन तीनों रानियों से कोई औलाद नहीं था, अकबर पर कोई बच्चा नहीं था। तो अकबर एक बच्चे के लिए काफ़ी परेशान था, तो अकबर औलाद की खातिर दिल्ली से अजमेर गया। अजमेर शरीफ के अंदर यहाँ जो दरगाह है वो हज़रत शेख सलीम चिश्ती का है। जब अकबर को वहाँ जानकर एक सपना हुआ था कि आप फतेहपुर सीकरी जाओ, अगर आपको कोई औलाद मिलेगा तो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से मिलेगा, वरना किधर ही से नहीं मिलेगा। अकबर बादशाह अजमेर से पैदल चलकर फतेहपुर सीकरी 1569 में आया था, 1569 में। लेकिन अकबर जब इस जगह पर आया था तो सर उस टाइम में यहाँ कोई किला नहीं था, केवल एक पहाड़ी इलाका था, माउंटेन एरिया। और उस पहाड़ी इलाके पर ये बाबा रहते थे जो वाइट दरगाह आप देख रहे हैं। यही मेन दरगाह हज दिया था ना, वो इन्होंने ही दिया था। जब अकबर के लड़का हुआ था ना, लड़का जो हुआ था वो महारानी जोधाबाई से हुआ था, हिंदू रानी से। लड़के का नाम भी बाबा के नाम के ऊपर रखा गया था, सलीम, क्योंकि अकबर ने अपने बच्चे के नाम 3 रखे थे। फर्स्ट नेम उसने सलीम रखा था सर, सेकंड नेम रखा था शेखू बाबा, क्योंकि अकबर नाम नहीं लेता था, उसको प्यार में कहता था शेखू बाबा। जब उसने राजनीति संभाली, गद्दी पर बैठा, नाम रखा जहांगीर। जहांगीर के मायने होते हैं सारे जहां का बादशाह। अकबर बादशाह ने उस जहांगीर की खुशी में ये पूरा ही फतेहपुर सीकरी किला बनवाया था। इस फतेहपुर सीकरी को बनाने में जो टाइम लगा था वो 12 साल का लगा। 1570 स्टार्टिंग हो चुका था। ये जो वाइट दरगाह देख रहे हैं ना मैम, ये दरगाह अकबर ने लाल पत्थर का बनाया था, लेकिन इसको बाद में चेंज जो किया था वो जहांगीर ने किया था। जब उसका लड़का बड़ा हुआ था जहांगीर, और उसे ये मालूम हुआ था मैं इनके आशीर्वाद से पैदा हुआ हूँ, तो उसने रेड स्टोन के ऊपर ये वाइट मार्बल लगाया था। और इसी दरगाह के अंदर यहाँ 3 साइड में वो स्क्रीन है जहाँ लोग सर, जिसको वर्ल्ड फेमस गेट कहा जाता है, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद मीन्स हाइट है, दरवाज़ा मीन्स डोर। दरवाजे का जो हाइट है आप लोग उधर जानकर देखेगा। अभी आप लोग इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं, क्योंकि ये गेट आम पब्लिक के आने का है। तुम्हें ওই দিক থেকে ঢুকে আসছো না? আমি বুঝতে পেরেছি, আমি তুই এই হলো বুলন দরওয়াজা। আমরা এর ভেতর দিয়ে অন্যদিকে যাচ্ছি, আপনাদের ভেতরের অংশটা পুরোটা দেখাবো বলে। दरवाज़ा, बुलंद मीन्स हाइट, दरवाज़ा मीन्स डोर। दरवाजे का जो हाइट है ना मैम, नीचे जो रोड बना हुआ है, नीचे रोड की हाइट और ऊपर टॉप तक 176 फीट है, यानी 176 फीट की हाइट। और जिस जगह आप लोग खड़े हैं ना प्लेटफॉर्म पर, यहाँ से हाइट है सर 134, यानी 134 फीट। और इसका जो आर्च है ना सर, चौड़ाई वो 90 फीट का है। और इस गेट का जो सीढ़ी बना हुआ है वो 52 है, 52 स्टेप्स। ये जो आबादी आप लोग देख रहे हैं ना, दिस इज़ फतेहपुर, जो मैंने आपको उधर से बताया था। नीचे में जो ब्लैक डोम्स है ना, काले वाले, ये उस ज़माने के शाही हमाम थे। हमाम मीन्स स्नान करने की जगह, क्योंकि अकबर का ये कहना था जो भी कोई मेरे गुरु की दरगाह पर जाएगा पहले यहाँ स्नान करेगा, यानी वो नहा धोगा बाद में अंदर जाएगा। पानी सूख चुका है, गवर्नमेंट ने इस जगह, इधर से आपका गाड़ी पास हुआ था ना सर, 2 किलोमीटर पहले अपने गेट देखा होगा, उसको आगराही गेट बोलता है, उधर से अकबर आता था, बाकी के 8 गेट हम पब्लिक के लिए। अभी हम लोग अंदर चलेगा दरगाह पर, आइए। भैया हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको। नहीं भैया, अच्छा यहाँ देखो, वो लोग मार्केट से एक नया नाल लाकर यहाँ लगा जाते हैं, क्योंकि दरगाह के अंदर लोग आज भी अपनी मनोकामनाएं करते हैं। कोई भी मनोकामनाएं करते हैं लोगों का वहाँ 100% फ्लो। और आपका पैर इतना बड़ा नहीं था सर, लेकिन ये नाल यहाँ पर ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन ने अपने नाम की वजह से साइज को बड़ा कर सन 1905 में लगाया। लोग ये जो एरिया आप देख रहे हैं सर, ये पूरा जमा मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने की जगह है, 5 वक्त का यहाँ नमाज़ होता है। आज भी लोग यहाँ 5 टाइम का प्रे करते हैं।
मैंने आपको बताया था बादशाह अकबर उस गेट से हर फ्राइडे के दिन यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आया करता था। ये मस्जिद का मेन पार्ट है जो पेश इमाम लोगों को आज भी यहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं। और आप लोग अंदर में जो एक खाजा मुमताज़ की और अभी आप लोग इधर 5 टाइम का लोग प्रे करते हैं। आप लोग ये जो ऊपर मीनार देख रहे हैं ना, ये मैदान अकबर के टाइम में एक आर्टिफिशियल लेक बना हुआ था, मोती झील। यानी झील यहाँ पर सूख चुका है, किसान लोग खेती करते हैं। आप लोग सामने एक मीनार देख रहे हैं ना जो कांटे कांटे लगे हुए हैं, वो अकबर के हाथी की कवि था जो उस टाइम में जज का काम किया करता था। हाथी ये सुनकर मालूम करता था कौन गुनहगार है। जो गुनहगार होता था उसे पैर रखकर मारता था, गुनहगार नहीं तो उसे छोड़ता था। हाथी जब मरा था उसका कवर नीचे बनाया, ऊपर मीनार रख दिया, हिरन मीनार उसको बोलते हैं। काम होता था यानी चिट्ठियाँ लेकर जाते थे, मोबाइल इंटरनेट वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं थी। सामने आप एक महल देखिएगा जिसको जोधाबाई महल कहा जाता है। रेड वाला जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं और वहाँ तक जो जाली वाला बिल्डिंग है मैम, इस पूरे महल को जोधाबाई महल कहा जाता है सर। अकबर के जो लड़का हुआ था ना महारानी जोधाबाई से, हिंदू रानी से, वो इसी महल के अंदर हुआ था। अकबर बादशाह ने सबसे पहले अपने रहने के लिए इस बिल्डिंग को बनाया था। जब उसके लड़का हुआ था फिर इस किले को बनाया था। लेकिन वहाँ भी चिश्ती फैमिली के लोग रहते हैं, टूरिस्ट लाउड नहीं है, वो जगह आबादी के अंदर आ चुका है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर एक मैदान है जहाँ फाइट हुआ था बाबर और रांगा संगा के बीच में, खांडवा युद्ध। खांडवा एक गांव है, वहाँ मैदान था। बाबर ने वो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई को बाबर ने जीता था। ये जो दरगाह आप लोग देख रहे हैं पीर बाबा का, हज़रत शेख सलीम चिश्ती जी का। अभी आप दरगाह के अंदर जाएंगे। ये जाली देखें आप लोग, 4 साइड में 56 डिज़ाइन की है, 56। हर जाली का डिज़ाइन अलग अलग है। रियल वाइट मार्बल का जाली है। लेकिन वो जो 3 जाली मैंने आपको बताया था ना जहाँ पर लोग धागे बांधता है, वो जाली दरगाह के अंदर। तो आप दरगाह बनाइए ওই বলে আরে ওকে 10 টাকা দিয়ে দাও না বাবা, কি দরকার শুধু শুধু সকাল সকাল না এটা কেমন মতন নেই। ये ले लो आपके पास। आप जब रिटर्न हो जाए ना फ्री हो जाओ तो जहाँ বুলন দরওয়াজা থেকে বেরিয়ে আমরা যে রানী যোদ্ধাবাইয়ের যে প্রাসাদ বা মহল সেইটি দেখতে যাব এবং সেটা এখান থেকে বেশ একটু দূরে, এবং সেখানেও আমরা একজন গাইডকে নিয়েছিলাম। এই পথ ধরেই আমাদের সোজা হেঁটে যেতে হবে। ওই জন্য বলছি আমার এটাই তোলো না। সেই প্রাসাদের সমস্ত যে ইতিহাস যে গাইড ছিলেন উনি সব বলেছেন। আমি ওনারও কোনো কথা কাটিনি, আমি চেয়েছিলাম ওনার কথাও আপনারা শুনুন। সেই গাইড আমাদের সামনে যাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ওনার সমস্ত কথাগুলো একটু ভলিউম বাড়িয়ে শুনে নেবেন। 4 साल तक, क्योंकि अकबर 1569 में आए, 1570 में जहांगीर का जन्म चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ। उसके बाद ये पूरा ही मोन्यूमेंट बनाया गया है सर जी। उसको फतेहपुर कहते हैं, इसको सीकरी कहते हैं, मगर सीकरी के अंदर सिर्फ रानिया, मिनिस्टर और अकबर के रहने का प्लेस बनाया सर जी। सीकरी का पहला पॉइंट है सर। सामने जो बिल्डिंग है नजर आता है आपको आउटसाइड, और एक और ऑफिस है। तो राजा टोटरमल का नाम सुना है? किसका नाम? राजा टोटरमल अकबर के मिनिस्टर थे। हाँ 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 टोटरमल। मैडम जी, राजा टोटरमल आज के ज़माने के वित्त मंत्री कह सकते हो, जिनके पास खजाने की कुंजी हुआ करती थी, उनका ऑफिस था वो।
दूसरा काम था खजाने की, एक काम था खजाने की देखा वाली, दूसरा काम था ज़मीन की नापातोली जो तहसीलों के अंदर होता है सर। एक तीसरा काम था टैक्स वसूली जिसको लगान कहते हैं। वहाँ उनका ऑफिस था, वही खाते रखने की जगह थी, वहीं बैठकर वो लिखा पढ़ी का काम किया करते थे। ছবি তোলো, আমি ভিডিও করছি। इस कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक पूरा प्लेस सिंधु रानी जोधाबाई का है, जिसको हवेली कहते हैं। आप कभी राजस्थान गए हो? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर? नहीं नहीं। सर राजस्थान में बड़ा बिल्डिंग को हवेली क्यों कहते हैं? क्योंकि बड़ा बिल्डिंग होती है वहाँ पर। और महारानी जोधाबाई अमीरकोट के रहने वाली थी, उसका भी बड़ा महल था। इस बिल्डिंग के चारों साइड ऐसे विंडोज बनाए थे मैडम, इसको हम लोग विंडोज बोलते हैं। राजस्थान में क्या बोलते हैं? झरोका। झरोका दर्शन भी कहते हैं। इस महल के अंदर आने जाने का रास्ता एक ही है सर। अकबर के अलावा किसी भी जेंट्स की परमिशन अलाउड नहीं थी। ये बाहर छोटा रूम सिक्योरिटी गार्ड रूम था। महारानी जोधाबाई के लिए सिक्योरिटी गार्ड कौन थे? ना लेडीज थे ना जेंट्स थे, किन्नर लोग रखे गए थे। ये पैलेस आपको अंदर से दिखाता हूँ, आ जाइए। एक ही रास्ता है जाने और आने के लिए सर, यहीं से जाना, यहीं से वापसी आना। শুধু ফটো তোলো, শুধু ফটো তোলো। आगे चलना है हमको। আরে যেটা বলছি শোন, জায়গা নেই এমনি, ফটো তোল। ফটো তুলছো তুমি? ফটো তুলে যাবে। पूरा ही प्लेस जोधाबाई का है सर। इसको हवेली कहते हैं मैडम। मगर महारानी जोधाबाई के रहने के दो पैलेस बने हैं सर। ये साइड में जो ऊपर से ब्लू दिखता है वो गर्मी का रूम है, समर पैलेस। इस साइड में जो ब्लू दिखता है इसको विंटर पैलेस कहते हैं, सर्दी का रूम है। मगर दोनों पैलेस एक जैसे हैं। और क्या है सर, इसके पीछे जाली है, पीछे पानी का लेक था मोती जी, उससे ठंडी हवा आती थी, रूम ठंडा रहता था, इसलिए समर पैलेस कहा जाता है। मगर इसके अंदर जाली जंगला कुछ नहीं, वो रूम पूरा ही पैक है। सूरज से गर्म होता था, उसको विंटर पैलेस कहते हैं। अकबर जोधाबाई, सर पीछे थोड़ा ध्यान देना है। अकबर की जब जोधाबाई की शादी हुई, साथ में शादी हुई थी, उसको 3 चीजें दहेज में मिली थी। भगवान राधा कृष्ण की मूर्तियां मिली थी सोने की, एक झांसियां मिली थी, एक हाथी मिला था। सामने अकबर ने मंदिर बनाया था जोधाबाई के लिए। यहाँ पर राधा कृष्णा की मूर्तियां रखकर जोधाबाई वहाँ पूजा करती थी। पूजा करने के बाद जोधाबाई जब बाहर आती थी, ये बीच में जो पौधा नजर आता है सर, पहले जमाने में तुलसी का था, आज तुलसी नहीं गुड़ैल का पौधा है, जिसको जोधाबाई जल चढ़ाया करती थी। ये सर छोटे छोटे रूम बने हैं चारों साइड में। महारानी जोधाबाई के साथ जो दासियां दहेज में आई थी ना, सर्वेंट नौकरानी, वो जोधाबाई के साथ महल के नीचे रहती थी, जोधाबाई महल के ऊपर रहा करती थी। इसी को जोधाबाई का पैलेस और शाही हवेली कहा जाता है। जब कभी जोधाबाई अपनी दासियों को बुलाती थी, आवाज नहीं देकर बुलाती थी, ताली बजाकर बुलाती थी। आवाज गूंज ताली को साउंड निकलता है। तो यह सबसे बड़ा प्लेस सिंधु रानी जोधाबाई का है, जिसको हवेली कहते हैं। आगे जोधाबाई का रसोई खाना है, मरियम का महल, तानसीन की जगह, शीश महल, अकबर का बेडरूम, आगे बहुत बड़ा प्लेस है। ताजमहल आपको कैसे लगा बहन जी? ये तो ताजमहल दुनिया का हम यही सोचते रहे कि इतना प्यार कोई किसी की वाइफ से करता है जो मरने के बाद इतना अच्छा बनाया। ये अलग सी सोच थी, सब करते हैं। इसका रीजन आपको नहीं पता नहीं। शाहजहां ने मोहब्बत की, मुझको आपको वचन देना होगा, आप मुझे मुमताज से मिला दोगे। उन्होंने वचन दिया और उन्होंने मुमताज से उसको मिलाया। सर एक मिनट, ये वेज किचन था, उसका एक नॉन वेज किचन था। क्योंकि अकबर की रानियाँ 3 मजहब की थी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। मगर मुस्लिम रानी, क्रिश्चियन रानी रहती थी आगरा फोर्ट। जब कभी आती थी उनके लिए नॉन वेज खाना वहाँ बनाया जाता था। मगर जोधाबाई राजस्थान की थी, राजपूत थी, वो शुद्ध शाकाहारी थी, उनके लिए शुद्ध शाकाहारी किचन बनाया। और महारानी जोधाबाई के लिए तो दासियाँ खाना बनाती थी सर। जिस दासी का रानी को खाना पसंद आता था, वो कान का झुमका गोल्ड का गिफ्ट में इनाम देती थी। ये कान का झुमका बना हुआ ऊपर में दिखता है। इस साइड उस साइड दोनों साइड 156 डिजाइन है, जिसमें हर डिजाइन अलग अलग बना हुआ है। ये राजस्थानी झुमके का डिजाइन है, आपको दिखाते हैं सबसे है। मगर वहां से जाओगे तो आप लोग दीवाने आम निकल जाओगे। शाहरुख खान का मूवी देखा परदेश? हाँ। इधर बहुत शूटिंग हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पर हुआ था। मुगले आजम ही राजा, लाल पत्थर, गरम हवा, परदेश, मेरे ब्रदर की दुल्हन, कच्चे धागे। ये पानी के बीच में जो सिंहासन है ना, इसी का नाम है अनूप तालाब। यहाँ तानसेन गाना गाते थे। এই শুভ ওই দেখ आ जाइए देखो। তানসেন এখানেই গান গাইতো, বাঙালি গায়ক ছিল। ভিডিও করছো না? इस पर आना, তুমি ছবি তোলো। वो लकड़ी वाले स्टेप पर नहीं आना, इस पर आना है, स्टोन के ऊपर। वो थोड़ा स्लिप होता है। क्या हुआ? हाँ जोधाबाई
ওকে বলে দিতে হবে কেন? না ওকে নিয়ে ছবি তুলে দে। आप लोगों ने शाहरुख खान की फिल्म देखी ना परदेश, लास्ट में गाना कव्वाली हुआ था, नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार। वो गाना यहाँ बैठकर गाया गया था, मगर अकबर ने इस जगह को शाहरुख खान या फिल्मों के लिए नहीं बनाया था, तानसेन मिनिस्टर थे उनके गाने की जगह बनाई थी। तानसेन वहाँ बंगाल बैठकर की थी। हाँ, तानसेन वहाँ बैठकर दीपक राग गाए थे, जिनकी आवाज से दिए जल गए थे। और यहाँ बैठकर वैजू बाबरा ने मेघ मल्हार गाया था, बारिश हो गई थी, दिए बुझ गए थे। हम लोग अनूप तालाब इसलिए कहते हैं सर, आज पानी भरा है मैडम, उस जमाने में तो गुलाब जल भरते थे। वहाँ तानसेन गाना गाते थे, अकबर यहाँ बैठते थे, साइड में मिनिस्टर बैठते थे। सर जी रानिया दासिया मैडम वहाँ से देखती थी ऊपर से, जो प्रोग्राम पर्दे लगे होते थे। आप लोग 450 साल बाद देखे, इसलिए सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं, अभी भी जो भी है आप नहीं, लोगों ने पर्दे ऐसे वगैरह। अच्छे के रखा है, यही हमारे लिए बहुत है। सर अकबर का बेडरूम नीचे समर पैलेस, ऊपर विंटर पैलेस है। ऊपर तो नहीं जा सकते, हर जगह गवर्नमेंट ने लॉक कर रखा है, मगर अकबर का बेड है स्टोन का, यहाँ पर अकबर सोते थे, आराम किया करते थे। ख्वाबगा जिसको नाम दिया है, सपना देखने की जगह। सारी बिल्डिंगें छोटी क्यों पता है आपको? ये पैलेस है, अकबर का फोर्ट नहीं है। और दूसरा कारण क्या है, फतेहपुर सीकरी मोन्यूमेंट अकबर ने बनाया था छोटा, इसलिए क्योंकि वो खुद छोटे कद के बादशाह थे। हाँ वो बहुत ये एसी रूम है, घर समझ, ऊपर है विंटर। रूम को ठंडा करने के लिए एसी कूलर फैन नहीं होते थे, सिर्फ जमीन पर रोज वाटर गुलाब जल का पानी भरते थे। ये रूम ठंडा भी रहता था और खुशबूदार भी रहता था। ये मैंने पत्थर का बेड है, इस बेड पर चढ़ने के लिए उस पिलर के बराबर से चंदन का लकड़ी का सीढ़ी था। सीढ़ी से चढ़कर अकबर इस बेड पर कालीन बिछाकर सोते थे। नाम क्या रखा था सर? ख्वाबगा। ख्वाबगा समझते हो? सपना देखने की जगह। मुस्लिम रानी रुपैया बेगम वहाँ से मिलने आती थी। ये मैडम भी यहाँ खड़ी है ना, ये पीछे गेट था सर, ये बंद कर दिया मैंने। यहाँ से हिंदू रानी जोधाबाई मिलने आती थी अकबर से। सर मिनिस्टर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से मिलने आती थी, छोटे गेट से। पहले लोग बादशाहों के सामने सर झुकाकर रेस्पेक्ट किया करते थे, इसलिए छोटा गेट बनाया गया है। तो ये अकबर का बेडरूम है, डाइनिंग हॉल, शीश महल, हमाम खाना आगे दिखाएंगे। तो उसके बाद पंच महल, क्लासरूम, चौपर, तानसेन की जगह शीश महल, ये देखते देखते फिर आगे चलेंगे। इसको डाइनिंग हॉल कहते हैं, मगर पहले जमाने में डाइनिंग टेबल कुर्सी नहीं था मैडम, जमीन पर दस्तरखान लगाकर खाना खाते थे अकबर। इसको बोलते हैं डाइनिंग हॉल। ये दराज में तो यहाँ पर खाने की डिशें रखी जाती है। अकबर एक बादशाह थे तो खाने भी बहुत बनाए जाते थे। 450 साल पुराना पेंटिंग है सच, ये पूरी बिल्डिंग ही पेंटिंग किया हुआ था, मगर टाइम के हिसाब से सब कुछ खत्म हो गया। और 450 साल पुराना है, पहाड़ी इलाका था मेरा। अकबर की बनारस से गंगा जल लाते थे, सुराई के अंदर गंगा जल भरते थे। अकबर उसकी फैमिली गंगा जल पिया करते थे। ये सुराई टूट गया, गवर्नमेंट ने इसको आधा बनाया है, अभी आधा और बनाया जाएगा। पहले ऐसा था सर, ठंडे के वक्त। वो मैडम व्हाइट वाला बिल्डिंग अकबर का हमाम खाना है, पर्सनल टॉयलेट, बाथरूम, स्नानघर, वो जगह बंद है। मगर यहाँ की सबसे सुंदर जगह आपको दिखाता हूँ, शीश महल, रुपैया बेगम का मेकअप हाउस। सबसे छोटा है, सबसे महंगा और सबसे सुंदर है। यहाँ से का फोटो ले लो, ये पूरा व्यू आता है। मोबाइल पे ले लो, आपके मोबाइल पर दे देंगे, सॉफ्ट कॉपी केवल बना दूं सर, एक दो फोटो। डांस किया करती थी, क्या किया, कोई चोरी नहीं की, चुपचाप बाहर बनना था। वो आगरा का शीश महल, मगर यहाँ पर शीश महल बनाया गया था, मगर शीश से टूट चुके हैं। आदमी देखिए यहाँ तक, आदमी देखो, सारा पत्थर है ना, सनी स्टोन राजस्थान का है, मगर एक एक पत्थर को उस जमाने के संतराज लोगों ने छेनी हथौड़े से काट काट कर लगाए हैं। 2 दिन मिलने हैं छुट्टी, ये दराज लगे हैं ना सर, चारों साइड में दराज जो दिखते हैं, इन्हीं के अंदर ग्लास लगे थे शीशे। सर एक ऑयल वाला दिया जलाया करते थे, चारों साइड आपको रोशनी से दिए ही दिए नजर आते थे मैडम। पत्थर की कारीगरी देखेंगे, करना आज के जमाने में बड़ा मुश्किल है मैडम। नहीं कर पाएगी, नोटिस लाभ कोई नहीं कर पाएगा, ट्राई करेगा तो भी नहीं कर पाएगा। मैडम जी, उस जमाने के लोगों को सिर्फ क्या मिलता था? काम के बदले खाना और कपड़ा। मगर काम तो अच्छा करते हैं, हाँ, ईमानदारी से काम किया करते थे। आप खुद ही बोलिए, हाँ। काम तो कम करते हैं, नहीं, मांगते ज्यादा। हाँ, आज का वक्त तो अलग ही है मैडम। आज तो सिर्फ बिना मेहनत के लोकल बैंक। So now you are looking at this
बनी है। मैडम जी छोटा छोटा रूम नजर आता है पीछे, ये उस जमाने की बहन पाठशाला है, यानी आज के ज़माने का गर्ल्स कॉलेज कह सकते हो, लड़कियां पढ़ती थी। मगर लोकल बंदा तो सर अलाउड था ही नहीं, पढ़ने वाली लड़कियां रानियां दासियां मिनिस्टर लोगों की होती थी। पढ़ाने वाले टीचर अबुल फजल थे, नाम सुना है? इन्होंने अकबर का इतिहास लिखा था, आईना अकबरी अकबर नामा। सर दोपहर के बाद लड़कियों को पढ़ाया करते थे, ऊपर लाइब्रेरी बुक रखने की जगह थी। अकबर पढ़े हुए बादशाह नहीं थे, अनपढ़ बादशाह थे। नाम लिखना भी जोधाबाई ने सिखाया था अकबर को। सर वो 5 स्टोरी बिल्डिंग है पंचमहल, 1 2 3 4 5 स्टोरी है पंचमहल कहते हैं, और प्लेयरों की सपोर्ट पर इसलिए इसको हवा महल कहते हैं। सर अकबर की फर्स्ट रानी पहली रानी मुस्लिम रुकैया बेगम थी, जो ऊपर टॉप से ईद और रमज़ान का चांद देखा करती थी। हिंदू रानी का नाम जोधाबाई था सर, करवा चौथ का चांद देखती थी और सुबह के टाइम सूरज को जल चढ़ाती थी। मगर एक रानी क्रिश्चियन भी थी सर, नाम मरियम था। चन्नी रात में बिल्डिंग के टॉप पर हवा खाने जाती थी, इसको हवा महल कहते हैं। 176 प्लेयर है, 176 स्टोन के प्लेयर पर सपोर्ट किया है बिल्डिंग को। 84 56 20 12 एंड 4, तो 176 स्टोन के प्लेयर लगे हैं सर। सर ये बाउंड्री दिखता है इधर में, यहाँ से लेकर लास्ट तक। इसके पीछे मैडम था दीवाने आम, पब्लिक कोर्ट, जनता दरबार लगता था। 5 गेट वाला चैम्बर बना है, यहाँ से अकबर मंत्री लोग जाकर इस चैम्बर के उस बाजू से बैठते थे। पीछे उसकी प्रजा यानी कि आम जनता बैठती थी सर। वहाँ बैठकर बादशाह अकबर आम जनता की परेशानियाँ सुनते थे और वहीं बैठकर फैसला सुनाया करते थे। जगह का नाम दीवाने आम पब्लिक कोर्ट कहते हैं। मगर कभी कभी अकबर फैसला सुनाने में कन्फ्यूज होते थे। अकबर का खूनी हाथी जो राजा मान सिंह ने दहेज में दिया था, मैडम जी गुनेगार बंदे को हाथी पैर से कुचलकर मार दिया करता था। हाथी की डेड हो गई, इसकी कवर एक जंगल में टावर के रूप में बना दी। हाँ वो देखिए। हाँ वो देखा उस हाँ, सामने चौपड़ गेम समझते हो, महाभारत में शकुनी मामा जो गेम खेलते थे, सब कुछ छोटे लाल अकबर की रानी यहाँ वो गेम खेला करते थे। बीच में छोटा सा सिंहासन दिखता है साहब, रानी अकबर बैठते थे। ये जमीन पर देखिए चारों साइड बॉक्स बने हुए हैं, लूडो की तरह है। 1 मिनट, यहाँ अकबर रानी वहाँ बैठकर जमीन पर बॉक्स बने, यहाँ रोटी की जगह दासियों को खड़ा किया करते थे सर। रंग बिरंगी ड्रेस बनाकर दासियाँ खड़ी होती थी, पाशा बैठते थे। जो नंबर आता था वो नंबर का दासी एक खाने से दूसरे खाने तक डांस करती हुई जाती थी। ये आगरा फोर्ट में भी है। सिंहासन पे बैठो 1 मिनट, मैडम मोबाइल दूसरा जगह कर जाएगी। कैमरा चालू है? हाँ चलो चलिए बैठिए, आप भी आओ सर, आप भी बेटा 1 मिनट। भविष्यवाणी यहाँ बैठकर किया करते फिर थे। से बताओ क्या? छोटा छतरी राज ज्योतिष के बैठने की जगह है। अकबर के पास एक राज ज्योतिष थे जो बादशाह अकबर के लिए भविष्यवाणी करते थे। अकबर रात में सो जाया करते थे, कोई सपना दिखता था, सुबह के टाइम पंडित जी से भविष्यवाणी पूछने आते थे अकबर। अकबर का हाथ देखकर पंडित जी उनकी भविष्यवाणी बताया करते थे। इसके पीछे 3 कमरे वाला जो बिल्डिंग है ना सर, इसका नाम है खजाना महल। सर अकबर के ज़माने में सोना चांदी और तांबे का पैसा रखने की जगह थी, इसलिए उसको बोलते हैं खजाना महल। इसको आँख मिचोली भी कहते हैं। लुका छिपी खेलते थे अकबर रानियों के साथ वहाँ पर। ये 2 मंजिला बिल्डिंग देखिए पहले, दीवाने खास মোবাইলটা পকেটে ঢুকেছিস? दीवाने खास পকেটে ঢুকেছিস মোবাইলটা? डबल स्टोरी दिखता है ना मैडम जी, ये बिल्डिंग, ये डबल स्टोरी दिखता जरूर है, मगर अंदर से 1 स्टोरी बिल्डिंग है सर। मीटिंग करने की जगह थी। अकबर उसके 9 मिनिस्टर मीटिंग नीचे बैठ के नहीं करते थे साहब। इस प्लेयर के ऊपर जो सिंहासन है, यहाँ बीच में अकबर बैठते थे सर जी। चारों साइड में जो गेट बने वहाँ उसके मिनिस्टर बैठते थे, तो अकबर और मिनिस्टर ऊपर बैठकर मीटिंग करते थे। दीवाने खास कहते हैं, मगर इसका दूसरा नाम यहाँ पे इसका सर दूसरा नाम है इबादत खाना। इबादत समझते हो? पूजा प्लेस। एक मिनट, इस प्लेयर के ऊपर सारे मजहब और सारे धर्म के चिन्ह बने हुए हैं। सबसे ऊपर जैन आर्किटेक्चर, जिगजैग पर्शियन, गेट वाला क्रिश्चियन, गेट वाला मुस्लिम, लोटस फ्लावर स्वास्तिक हिंदू, ताज वाला बुद्धिस्ट, लास्ट में सुराई उमर खयाम मुगल बादशाहों का चिन्ह। सारे मजहब की डिजाइनिंग क्यों बनाई थी अकबर ने? 1582 में सर एक धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम दीन इलाही कहते हैं। इसके ऊपर जाने का एक रास्ता वहाँ से है, एक रास्ता इस साइड से है, मगर सारी जगह बंद है, गवर्नमेंट ने सारी जगह बंद कर दी। सर एक चीज जो दिखा दूँ, आ जाइए बस। ये मैडम जी उस जमाने का पानी का लेक था, मोती झील। पानी से टच होने के बाद मैनूमेंट के लिए ठंडी हवा आती थी। पानी सूख चुका है, वहाँ किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं। घूमते घूमते रहे, देखो इधर से आ जाइएगा, ठीक है? नहीं अभी तो घूमना है आपको। अरे ऐसे सीधी बनाना, वहीं पहुंच जाओगे, वही रास्ता है। अच्छा वो जो बाहर हम लोग शुरू से चले थे, लास्ट आ गए, अब लास्ट में वापसी ऐसे ही जाना है, फोटोग्राफी करते करते। ओके मैडम? গাইডের কথা শেষ করা হলে আমরা এইখানে কিন্তু অনেকটা সময় নিজেদের মতন করে কাটিয়েছিলাম। আপনাদেরকেও বলবো এই অংশটি দেখতে এলে অনেকটা সময় নিয়ে আসুন। প্রতিটা কারুকার্য দেওয়ালের বলুন, প্রত্যেকটা জিনিস দেখবার মতন সুন্দর করে নিজেদের মতন করে দেখুন, কারুকার্যগুলো দেখুন। এবং থাম্বাগুলোতেও কিন্তু এখানে কারুকার্য করা আছে, সেগুলোও কিন্তু বাদ দিলে চলে না। আমরা এখানে নিজেদের মতন করে ভালো করে ঘুরেছি।
আমার ভিডিওগুলি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারেন। আমার আগের ভিডিওগুলি যারা দেখেননি আমি ওনাদের কাছে জানাবো অবশ্যই দেখুন। ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, যেন এই ভিডিও দেখে অন্যেরাও এই জায়গাগুলি বেড়াতে যেতে পারেন। আমার ভিডিওটি দেখার জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ। পরবর্তী ভিডিও জয়পুরে নিয়ে খুব শীঘ্রই আসছি আমি।